Good morning, students. This is the second part of the globalization and the Indian economy. In a previous lecture, we had discussed about the production across countries, and we had also discussed about MNCs. And we had seen that under MNCs, the goods and services are produced globally. As a result, the production is organized in increasingly complex ways. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रोडक्शन होता है. डिजाइनिंग पार्ट कहीं पे होता है वर्ल्ड में, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स कहीं और पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होता है, असेंबल्ड किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होता है, एंड आफ्टर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सेल थ्रू आउट द वर्ल्ड. The process is very complex. Now we will discuss the next topic, that is interlinking production across countries. Interlinking production across countries में जैसे कि MNCs हैं, जब MNCs प्रोडक्शन यूनिट्स सेटअप करते हैं किसी भी कंट्री में, तो प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने से पहले they consider some major factors. First they look for major factors, then they decide to set up their production units. And what are those major factors? कि वो कौन कौन से factors consider करते हैं? That is the availability of skilled and unskilled labor at a low cost. Then the factory should be closer to the market for finished products. And third part is availability of other factors such as infrastructure and the government policy. What does it mean by government policy? We will discuss later on. But in this lecture, what we will discuss कि एक बार MNCs जब फैक्ट्री सेटअप करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं किसी भी कंट्री में, उससे पहले ये फैक्टर्स वो कंसिडर करते हैं. Availability of skilled and unskilled labor, then whether it is close to the market or not, favorable government policy है कि नहीं. अगर ये फैक्टर्स, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती हैं, then they decide to set up production units in that country. अब प्रोडक्शन यूनिट सेटअप का प्रोसेस क्या है? पहले वो क्या करते हैं? They spend money to purchase assets. Assets means फैक्ट्री सेटअप करने के लिए क्या चाहिए? पहले लैंड चाहिए, लैंड के बाद उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग वो बनाते हैं, बिल्डिंग बना के बाद मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, and this is called investment. Investment means the money which is spent for the purchase of assets. Assets means fixed asset, land, building, machineries, equipments. And when this investment is done by any MNC, this is called foreign investment. So here we have done two definitions, the definition of investment and foreign investment. Investment का definition क्या है? The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment, and investment made by MNC is called foreign investment, because MNCs are the foreign companies. तो foreign companies जो investment करते हैं किसी और country में, this is known as foreign investment. And कोई भी MNC जब invest करती है, तो why the MNCs are investing in other countries? किसी और country में क्यों invest करते हैं? To earn more and more profit, with the hope to earn profit. वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, इसी उम्मीद से वो इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, क्योंकि बिजनेस का मोटिव ही है टू अर्न प्रॉफिट, है ना. तो इसी मोटिव से बिजनेस किया जाता है. सिमिलरली द MNCs they set up their production units in various countries with the hope to earn more and more profit. अब जो डिफरेंट कंट्रीज में ये प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं, इसका भी अलग अलग तरीके हैं. There are variety of ways in which the MNCs they set up production unit in different countries. तो ये अलग अलग ways क्या है, कैसे MNCs अलग अलग countries में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं. Let us see. First वो क्या करते हैं, कभी कभी MNCs they set up production units
jointly with some of the local companies of the country. कंट्री में जो भी कंपनीज है उसके साथ जॉइंटली वो प्रोडक्शन यूनिट्स सेटअप करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। इससे लोकल कंपनीज का क्या फायदा है? लोकल कंपनीज क्यों एग्री होती हैं एमएनसी के साथ जॉइंटली प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए? क्योंकि लोकल कंपनीज को इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। एमएनसी इज अ बिग जाइंट, बहुत सारे पैसे हैं, मनी, दे आर हैविंग ह्यूज बजट। तो एमएनसीज क्या करते हैं लोकल कंपनीज के लिए? वो एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड परचेज में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मशीनरीज परचेज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका फायदा लोकल कंपनीज को भी होता है। सेकेंड, एज द मोस्ट ऑफ द एमएनसीज आर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, तो उनके पास लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी होती है, एंड न्यू टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। न्यू टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो एमएनसीज आती है उसके साथ न्यू टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है लोकल कंपनीज को। दैट इज व्हाई मेनी कंट्रीज द एमएनसीज दे सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट्स जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ द कंट्री। एक एग्जांपल है इसका, एक एग्जांपल क्या है, जैसे कि इंडिया में आप जानते हो कि फोर्ड मोटर्स है ना। फोर्ड मोटर्स क्या है? इट इज एन अमेरिकन कंपनी। तो एंड फोर्ड मोटर्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, और जिसका प्रोडक्शन यूनिट्स 26 कंट्रीज में स्प्रेड ओवर है। तो फोर्ड मोटर्स 1995 में इंडिया में आए, और इंडिया में आके चेन्नई में महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन में फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट सेटअप किया है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा इज एन इंडियन कंपनी जो कि जीप एंड ट्रक्स प्रोड्यूस करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज ऑल्सो बिग कंपनी, ऐसा नहीं है वो छोटी कंपनी है। लेकिन फोर्ड मोटर्स जब इंडिया में आए 1995 में, तब महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन में चेन्नई में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप किया था, और इनिशियली 1995 में 1700 करोड़ रुपीस स्पेंड किया था फोर्ड मोटर ने टू सेट अप प्रोडक्शन यूनिट लार्ज प्लांट नियर चेन्नई विद कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद विद इन 20 years के बीच नाउ फोर्ड मोटर्स दे आर सेलिंग, अभी 2014 के हिसाब से और भी ज्यादा हो गया है अब डेटा, कि 77,000 कार्स वो इंडियन मार्केट में सेल करते हैं। फोर्ड मोटर्स 77,000 कार्स इंडियन मार्केट में सेल करते हैं। अनदर 77,000 कार्स इंडिया में से साउथ अफ्रीका के मार्केट में, मेक्सिको के मार्केट में, ब्राजील के मार्केट में वो सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। So the company wants to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe. अब वो जो फोर्ड मोटर्स है इंडिया में जो यूनिट है उसको एज अ सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड डेवलप करना चाहते हैं, बट दे आर प्रोड्यूसिंग कार्स जॉइंटली विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स jointly with some of the local companies of the country, ये एक ऑप्शन है। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन रूट है, मोस्ट कॉमन रूट क्या है? द एमएनसीज क्या करते हैं? दे बाय अप द लोकल कंपनीज, लोकल कंपनीज को खरीद लेते हैं, उसके बाद लोकल कंपनीज को एक्सपैंड करते हैं, प्रोडक्शन एक्सपैंड करते हैं। इसका भी ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हुआ, एंड दिस इज द कॉमन वे, common route for the MNCs to invest in the other countries. लोकल कंपनीज को खरीद के फिर प्रोडक्शन एक्सपैंड करते हैं। तो इंडिया में परक फूड एक फूड कंपनी थी, तो और अमेरिका का जो कारगिल फूड है एक एमएनसी है, कारगिल फूड अमेरिकन एमएनसी,
वो इंडिया में आए और परक फूड को उसने खरीद लिया है, परचेज कर लिया है। परक फूड एक ऑयल कंपनी है, रेपुटेड ऑयल कंपनी थी, तो उसके पास ऑयल रिफाइनरीज भी था और भी। तो अभी कारगिल फूड ने परक को खरीद लिया है। मार्केट में जितना भी ऑयल प्रोडक्ट्स है, पहले जो परक फूड के अंडर में अम्ब्रेला के नीचे सेल होता था, वो कारगिल फूड के नाम से अभी इंडिया में सेल होता है। और कारगिल फूड इतना बड़ा है कि उसके कैपेसिटी प्लांट का इतना बड़ा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। कारगिल फूड हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब सोचो, एमएनसी कहाँ के कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है। इंडिया में आके इट हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। और उसका इतना बड़ा ज्यादा कैपेसिटी है कि 5 मिलियन पाउचेस ऑफ ऑयल डेली प्रोड्यूस होता है। डेली 5 मिलियन पाउचेस ऑफ ऑयल प्रोड्यूस होता है। और ये जो एमएनसीज होते हैं, इनकी बजट इतना ज्यादा, इनके पास इतने पैसे हैं, कभी कभी तो कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो टोटल बजट है, कंट्री का जो बजट है, एमएनसी के पास इससे काफी ज्यादा बजट वेल्थ होता है, पैसा होता है। So these MNCs are very rich. That is why they prefer to buy up the local companies and then expand their production. Local companies को खरीद के फिर प्रोडक्शन एक्सपेंड करते हैं। और थर्ड वे क्या है, प्रोसीजर क्या है? थर्ड वे क्या करते हैं, एमएनसीज क्या करते हैं, मोस्टली गारमेंट्स में, फुटवेयर में, गारमेंट्स एंड फुटवेयर में वो जो प्रोडक्शन होता है, जो लोकल कंपनीज के छोटे पार्ट में वो प्रोडक्शन को डिवाइड कर देते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे कि आप जीन्स पहनते हो ना, लिवाइस की जीन्स है, पेपे जीन्स है, बहुत सारी हैं, और फुटवेयर है, नाइके हैं, एडिडास हैं, हश पपीज हैं। तो ये जो कंपनीज है, फुटवेयर कंपनी या क्लोथ कंपनी, गारमेंट्स कंपनी, मोस्टली एमएनसीज क्या करते हैं, जो अभी आपको मैंने पिक्चर्स दिखाए थे, पीटर इंग्लैंड है, बहुत सारे एलन सोली हैं, ये सारे जो कंपनीज हैं वो ऑर्डर इंडिया के ही छोटी कंपनीज को ऑर्डर प्लेस करते हैं। मीन्स आप जो जींस पहनते हो वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग बाय अ लोकल कंपनी, वो एमएनसी का ब्रांड नेम टैग लग जाता है इसके पीछे। जैसे कि लिवाइस का टैग लग गया, पेपे जींस का टैग लग जाता है, एंड आफ्टर दैट द कंपनी सेल दोज प्रोडक्ट्स अंडर देयर ब्रांड नेम। जब भी उसके ब्रांड नेम के थ्रू प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, मीन्स हम एज अ कस्टमर क्या है, हमें लगता है ये क्वालिटी एश्योर्ड है, दैट इज व्हाई प्राइसेस आर वेरी हाई। तो ये जो एमएनसीज है, दीज लार्ज एमएनसीज हैव ट्रेमेंडस पावर्स। वो प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, क्वालिटी and delivery and labor condition of these distance producers. So these are the various way by which the MNCs they are producing, they are setting up production units in various parts of the country, various parts of the country ने various parts of the world, globe के अलग अलग parts में। That is why as a result क्या होता है, as a result, production in these widely dispersed location is getting interlinked. अब इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट्स के साथ बांग्लादेश के मार्केट, चाहे यूएस के मार्केट हो, चाइना के मार्केट हो, ये इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, रिलेटेड हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। That is why it is said that interlinking production across countries, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उसके साथ इंटरलिंकिंग हो जाते हैं और कनेक्टेड हो जाता है। सो दीज आर द वेरियस वेज बाय विच द एमएनसीज दे सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट्स इन वेरियस कंट्रीज। आफ्टर दैट फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड तो पहले भी होता था, जैसे जब कॉलोनियल पीरियड में, उस टाइम भी फॉरेन ट्रेड रूट होता था। साउथ एशिया और इंडियन मार्केट वाज कनेक्टेड थ्रू द ट्रेड रूट, सिल्क रूट थ्रू कनेक्ट होते थे ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड थ्रू दिस रूट जो इंडिया के रिच
स्पाइसेस है, स्पाइसेस, देन सिल्क, ये एक्सपोर्ट होता था। ये पहले भी होता था, अभी भी होता है, लेकिन उसमें क्या फर्क होता है, फॉरेन ट्रेड जब होता है, देन द producers, earlier the producers, they used to produce only for their local market, within the country सेल करने के लिए वो प्रोड्यूस करते थे। अभी उनका जो प्रोडक्ट्स है, नॉट ओनली दे आर सेलिंग विद इन द कंट्रीज, दे आर सेलिंग आउटसाइड द कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं और वो सेल करते हैं। इससे क्या होता है, डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है, वो गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस कंट्री में। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल इन अ फर्स्ट लेक्चर, यूएस बेस्ड डिजाइन यूएस में, फिर चाइना में कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होता है, फिर मेक्सिको में असेंबल होता है, फिर मेक्सिको से पूरे दुनिया में सप्लाई होती है। सिमिलरली जब प्रोडक्शंस होता है वर्ल्ड के लिए, तो डिस्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दे फिल क्लोज कंपटीशन भी हो जाता है, प्रोड्यूसर्स के बीच क्लोज कंपटीशन भी होता है, और इससे कस्टमर्स का फायदा है, बिकॉज वी आर हैविंग वाइड रेंज ऑफ गुड्स। जितना ज्यादा ऑप्शन होगा उतना ही प्राइस रीजनेबल हो जाएगा। यू कैन बार्गेन, कि जितना एक अगर प्रोड्यूसर है, एक ही लोग बेच रहा है, यूर कंज्यूमर्स, customers are compelled to buy from that person. This is called monopoly. And if there is monopoly, then the producer can fix his price according to his wish. अपने हिसाब से उस प्राइस को फिक्स कर सकता है। लेकिन मार्केट में अगर बहुत सारे कंपिटिटर्स हैं, तो दिस इज गुड फॉर द कंज्यूमर्स। तो इसके लिए जो चाइनीज, I want to give an example, जो चाइनीज टॉय कंपनीज का हुआ है इंडिया में, क्या हुआ, इंडिया में जो टॉयज मिलते हैं these are very expensive, और चाइना में जो टॉयज बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, ड्यू टू द चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। तो इसलिए चाइनीज प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन अ हायर प्राइस, वो इंडियन मार्केट में टॉयज बेचते हैं। जब इंडियन कस्टमर्स को ऑप्शन है, चाइनीज टॉयज एट अ वेरी लो प्राइस, इंडियन टॉयज एट अ वेरी हाई प्राइस, many customers are there, they will, most of the customers you can say, they will go with the Chinese toys, क्योंकि Chinese toys में वैरायटी भी है, चमक भी है, प्राइस भी कम है, न्यू टेक्नोलॉजी भी है। इससे क्या होता है, कस्टमर्स के पास तो वाइड रेंज आ जाता है, लेकिन ये हो जाता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए मुश्किल, क्योंकि इसलिए जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द चाइनीज प्रोड्यूसर्स, उनका बिजनेस फिर लॉस में चला जाता है। सो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट, दिस इज ऑल्सो इम्पैक्ट, वी विल डिस्कस लेटर ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब परचेज एंड सेल across the geographical boundaries of the country. इससे क्या होता है, गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, एक मार्केट से और एक मार्केट में गुड्स ट्रैवल करते हैं। जब गुड्स एक मार्केट में से और एक मार्केट में ट्रैवल करते हैं, तो दोनों मार्केट में गुड्स का प्राइस इक्वल हो जाते हैं। एंड फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सेल गुड्स एंड compete with the producer of other countries। ये प्रोड्यूसर के लिए है, प्रोड्यूसर के पास अपॉर्चुनिटी है कि नॉट ओनली दे कुड सेल इन द लोकल मार्केट या मार्केट विद इन द कंट्री, नाउ दे आर एबल टू सेल आउटसाइड द कंट्री। कंट्री के बाहर अलग अलग कंट्रीज के मार्केट में भी वो सेल कर सकते हैं। एंड ईच प्रोड्यूसर कैन compete क्लोजली विद द competitor इवन इफ दे आर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस अवे। चाइनीज गुड्स, एंड ये कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, गुड अपॉर्चुनिटी है, गुड ऑप्शंस है। इट ऑल्सो enables a buyer to take advantage of variety of choices by importing the goods। आपके पास एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, यू हैव वैरायटी ऑफ चॉइसेस एंड यू कैन चूज फ्रॉम दोज ऑप्शंस। आपके पास प्राइस भी रिजनेबल रेट में आपको
मिल जाएगी. This is the example and I have given you the example of Chinese toys. So I think this much is clear to you. Thank you and have a good day.